Hi, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो कि निकली है एम्स दिल्ली में. Here you will be working as a psychologist or as a social worker on a project, and this project is funded by ICMR. Okay, so let's see further what is there in the advertisement. Okay, so here it is. Recruitment for research staff under ICMR extramural projects. Okay, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे उस प्रोजेक्ट का टाइटल होगा इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज to improve the quality of life of cancer survivors and their caregivers. Okay, so you can just see what the project is all about, and अगर आपको ये interesting लगता है तो you can take a call here. Okay, and यहाँ पे applications, who is inviting the applications? These applications are invited on a contractual basis. Okay, these are not the permanent vacancies, and of course project है तो it is a contractual basis one. ठीक है, for this particular project, for the following post under the ICMR funded project. Okay, so this project is your ICMR funded, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये फंड किया गया है प्रोजेक्ट. एंड कहाँ ये रन होगा? इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी at Dr. B.R. Ambedkar IRCH AIIMS Delhi. Okay, what is this? This is a cancer center in AIIMS Delhi, specialized cancer center. This stands for Dr. B.R. Ambedkar Institute Rotary Cancer Hospital. Okay, this is a cancer center, specialized one at AIIMS Delhi. So of course department काफ़ी अच्छा है and project is also good and already it is funded by ICMR, you can see. ओके, अब बात करते हैं पोस्ट की. कौन कौन सी पोस्ट निकली है इसमें? फर्स्ट पोस्ट इज योर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3. यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड और सोशल वर्कर आप काम कर सकते हैं. नंबर ऑफ पोस्ट 1 है. असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए आपके पास या तो 3 ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, इधर इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एंड उसके साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके, यानी कि आपकी बैचलर्स प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो. ओके, अदरवाइज यू शुड बी having a postgraduate degree in psychology, clinical psychology या फिर social work. Okay, so if you have PG then experience is not required. So this is the essential qualification. अब desirable qualification यानी कि which can make you stand out if you have these skills, वो कौन कौन सी हैं? Training in emerging technologies and methodologies for knowledge management and communication would be an asset. Okay, experience working in the area of information and knowledge management or communication projects in oncology, and knowledge of IT applications and MS Office. Basically latest technologies पे आपको काम करना अगर आता है तो that would be a add on. Okay, and इसमें सैलरी कितनी रहेगी? It will be 28,000 plus 30% HRA per month. Okay, age limit as per ICMR norms. So ICMR के accordingly, as far as I have seen, these kind of posts के लिए generally 35 years की age रहती है. Okay, if you want you can also verify it from ICMR website or maybe other relevant sources. Okay, but as far as I have seen this project technical support 3 की जो age रहती है, it is 35 years maximum age. Okay, then is project technical support 1, another vacancy. Again here you will be working as a psychologist and social worker. फिर से यहाँ पे भी 1 vacancy है. यहाँ पे essential qualification है 3 years of undergraduate degree in psychology, clinical psychology, social work, 1 year of experience after graduation. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स डिग्री चाहिए एंड प्लस 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है, तो दिस मच. सो इवन यू कैन सी कि यहाँ पे जो बैचलर्स करके गए हैं बच्चे, दे कैन ऑल्सो अप्लाई, सो दिस इज अ गुड थिंग. ठीक है,
एंड डिज़ायरेबल यहाँ पे डिज़ायरेबल स्किल्स क्या होंगी? अगेन सिमिलर काइंड ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मेथोडोलॉजीज़ फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन वुड बी एन एसेट, सेम वैसा ही दिया है इन्होंने। एक्सपीरियंस वर्किंग इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स इन ऑन्कोलॉजी, नॉलेज ऑफ आईटी एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, वही फिर से यहाँ पे, लेकिन सैलरी रहेगी 18,000 प्लस 30% एचआरए फॉर पर मंथ। एंड एज लिमिट इसका आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट इसकी कहीं ना कहीं शायद 28 ईयर्स की एज रहेगी। ऑल्दो आई वुड से कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एज लिमिट एक बार अपने तरफ से भी इसकी कहीं से कंफर्म कर लेना, आईसीएमआर की वेबसाइट पे हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विच आई ऑफन सी। ठीक, सो दैट इज देयर। एंड इसमें आपको आप जब वेबसाइट पे जाएंगे एम्स की, तो वहाँ पे आपको ये नोटिसेस में आप जाना, मतलब अप्लाई करने का मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे यू हैव टू अप्लाई। गो ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स दिल्ली, वहाँ पे जो टैब्स होते हैं ऊपर नोटिसेस में जाना, रिक्रूटमेंट में जाना, एंड रिक्रूटमेंट के अंदर ही आपको एम्स रिक्रूटमेंट मिलेगा, वहाँ आपको जाना है। वहाँ आपको बहुत सारे इनके एडवर्टीजमेंट्स की लिस्ट दिखेगी, ये थोड़ा सा नीचे जाके ही आपको दिखेगा। ठीक है, एंड वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि व्हाट ऑल इज देयर। एक बार एडवर्टीजमेंट को खुद से भी पढ़ लेना, ऑल दो मैंने काफ़ी हद तक ये आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, एंड इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 24 अप्रैल। ठीक है, सो 24 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ जब आप एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। ठीक है, या फिर क्यूआर स्कैन करने का आपको मिलेगा, वहाँ से आप लिंक पे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब एप्लीकेशन उनके पास पहुँच जाएगी, तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे देन ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, सो मेल के ज़रिए आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और नॉट, एंड जस्ट इंटरव्यू ही होना है इसमें, एंड देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोजीशन। ओके, सो आई होप इसमें कुछ ज़्यादा डाउटफुल है नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, एंड बहुत छोटा भी है। सो आप आराम से जाके ये वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल अगर एडवर्टीजमेंट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी। एंड अगेन आई वुड से कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज का अपनी तरफ से भी कंफर्म कर लें। वैसे हालांकि इसमें ऑफ कोर्स रिजर्वेशंस भी अप्लाई होंगी। ठीक है, आईसीएमआर नॉर्म्स हैं तो, बट जितना मैंने देखा है एडवर्टीजमेंट्स, उसके बेसिस से मैंने आपको एज का एक आइडिया यहाँ पे दे दिया है। एंड अगेन आई वुड रिपीट सेम थिंग जो मैंने लास्ट अपने ये करियर ऑप्शन वाले ही वीडियो में जो आपको एक बताया था, जो रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसी आई थी, राइट, कि ये वैकेंसीज एक एक दो दो करके ही निकलती हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है एंड आप खुद भी ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो दिस थिंग यू ऑलरेडी माइट नो, है ना। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई इन दिस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, and if you found this video useful, such topics are benefiting you, then please like it, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next video or next class. Till then, take care. Bye bye.